Greetings class 7th. In this video we are going to solve exercise of a future tense, which is your chapter number 8, and grammar book name is Grammar Track. So as you know already, I have uploaded solution of rest of the chapters, so you can watch the videos and you can go to the playlist, check playlist whatever is given there. And Ratna Sagar publication, writing section, grammar section topics also already uploaded on the channel. You can watch them. And thank you so much for subscribing the channel. Thank you so much guys. Let's come to its solution now. What is the solution here? The very first question is use contrasted. You have to use your contrasted form of verb here. Like first is given I will, and you have to rewrite the sentences here. I will go for shopping tomorrow. So what do you mean by contracted forms? Contracted means like I will. So how will you write I and will here? Like I apostrophe and double L. So like this, you have to add only this thing. Like I will, you have to write I will like this. Rest of the sentence will remain same. I'll go for shopping tomorrow. Like she will organize the meeting. So she will. How will you write she will? She apostrophe and double L. Means W and I will not be written here. जैसे she के साथ हम she will लगाते हैं तो will में W I double L आता है. बट हमने यहाँ पर will complete नहीं लिखना, हमने ये apostrophe लगा के double L लगाना है. जैसे they will, you will, he will, we will. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. Next is question B. In question B, what is given here? The Delhi government has announced that due to some water measure is मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसने कुछ अनाउंसमेंट किया वाटर से रिलेटेड की जो वाटर वहां पर शॉर्टेज हो गई थी वाटर की सप्लाई. तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि वाटर की सप्लाई से रिलेटेड जो वाटर है उससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. मीन्स वाटर से रिलेटेड आपको फ्यूचर टेंस में यहाँ पर सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं. सो लाइक वन इज गिवन फॉर यू डूज मीन्स क्या आपने करना है. आई विल चेक वाटर लीकिंग फ्रॉम टैप इन माई हाउस एंड इन माई कॉलोनी. सो व्हाट विल यू डू? सो व्हाट विल यू डू? यू हैव टू राइट इन डूज. मीन्स करना है, क्या करना है. डोंट्स मीन्स जो नहीं करना है आपको फ्यूचर में. सो फ्यूचर टेंस में आपने इसको बनाना है. लाइक वन इज डन फॉर यू. सेकेंड इज आई विल यूज वाटर इफ इट इज नेसेसरी. Second, I will aware the people about the scarcity of water. Next is I will take care of all the taps in my colony. अब आपको जो नहीं करना है उसी में आप क्या लगाएंगे? will not लगाएंगे. Like I will not waste water anymore. I will not misuse it. And I will not let the tap on if it is not in use. I will not let the water blow unnecessarily. मीन्स आपने यहाँ पर I will not करके लगाना है. यहाँ पर आपको जस्ट will लगाना है कि आपको क्या करना है, आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे डॉन्ट से. नेक्स्ट इज द सी क्वेश्चन. इन सी क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू. आपके सामने एक प्रॉब्लम गिवन है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करेंगे, उसको आपने क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन लोगे आपको फ्यूचर टेंस में बताना है. वन इज डन फॉर यू. नेक्स्ट इज गिवन एयर क्वालिटी इंडेक्स इज deteriorating day by day. Okay, so what will you take action for this one? You will take like I will convey it to the people for their safety. What action you would take? It's not necessary that you will take the same action. आप कोई और एक्शन भी ले सकते हैं और आप उसको विल करके ही आपने उसके आंसर को लिखना है. लाइक सेकेंड इज देयर ग्राफिटी इज डिफेसिंग आवर मॉन्यूमेंट्स. जो ग्राफिटी मीन जो आर्ट बना देते हैं इनके ऊपर, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के ऊपर. तो यहाँ पे इसको ना मतलब क्या हो रहा है, वो उसकी शान जो उसकी जो ब्यूटी उसको वो मतलब कम करता जा रहा है. तो आप उस पर क्या एक्शन लेना चाहेंगे? लाइक आई विल अवेयर द पीपल अबाउट इट ऑन द फेसबुक पे. फेसबुक पे मैं उसको लोगों को अवेयर करूंगा, व्हाट्सएप पे करूंगा, ऑनलाइन करूंगा. वट एवर एक्शन यू विल टेक, यू हैव टू राइट इट देयर. नेक्स्ट इज लिटरिंग इन पब्लिक पार्क इज ऑन द राइज. मीन्स लिटरिंग मीन्स की मतलब जैसे होता ना कि वेस्ट चीजों को फैला देना, चीजों को फेंक देना. ऐसे पब्लिक पार्क्स के अंदर तो चीजों को फेंकना एक मतलब गार्बेज इकट्ठी कर देना या मतलब किसी भी तरह से चीजों को इधर उधर फेंक देना, यूज करके रैपर्स को फेंक देना. तो ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. तो आप क्या एक्शन लोगे? आई विल आस्क द पीपल टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन. मैं लोगों को बोलूंगा, मैं लोगों से कहूंगा कि एनवायरमेंट को क्लीन रखे. तो आप ये एक्शन फ्यूचर में लेंगे. तो और कोई एक्शन लेना, देन यू कैन राइट इन विल सेंस. नेक्स्ट इज ट्रैफिक जाम इज इन द सिटी आर हॉरिबल. भाई जब सिटी के अंदर ट्रैफिक जाम होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो आप क्या एक्शन लोगे? आई विल सजेस्ट द पीपल टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अगर ज्यादा ही जाम लगता है तो हम क्या करेंगे? अपने पर्सनल व्हीकल ना ले जा करके हम सजेस्ट करेंगे कि लोगों को कि वो पब्लिक
अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, ना कि पर्सनल को। मैनी चिल्ड्रन आर सीन बैगिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा है बैगिंग करते हुए ट्रैफिक सिग्नल पे, तो आप क्या एक्शन लोगे? आई विल हेल्प देम टू स्टार्ट सम वर्क, कि मैं उनकी हेल्प करूंगा कुछ वर्क स्टार्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज गिवन D question. What is given in D question? D question is given that complete the missing sentences in the table in the future condition continue. Future continue में आपने affirmative, ओके, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, आपको ये चार कंप्लीट करने हैं। उनमें से एक आपको गिवन है और आपको 3 ही यहाँ पर लिखने हैं। लाइक एक आपको गिवन है इसमें अफर्मेटिव में, दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, अफर्मेटिव आपको गिवन है यहाँ पे, तो आपको फर्स्ट का नेगेटिव बनाना है। तो क्या बनाएंगे? दे विल नॉट बी ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी। नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाना है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, विल दे बी ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क वाला बनाना, नेगेटिव में नोट लगाना। तो यहाँ पर नेगेटिव, आप नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं? नोट, तो आप नोट यहाँ पे लगाएंगे। इंटेरोगेटिव के लिए आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हो तो पहले लगाओगे। लाइक हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? will they not be organizing a party, and the rule will remain same in all these things also. Like second is given affirmative, she will be attending school tomorrow. ओके, नेगेटिव क्या होगा? नहीं के लिए, शी विल नॉट बी अटेंडिंग स्कूल टुमारो। इंटेरोगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन मार्क, तो जो हेल्पिंग वर्ब है एफर्मेटिव वो पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम हियर, लाइक विल शी बी अटेंडिंग स्कूल टुमारो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, फिर से इंटेरोगेटिव है तो विल वाला आएगा, विल शी बी नॉट अटेंडिंग स्कूल टुमारो। ओके, सो नेगेटिव के लिए नोट लगाएंगे, इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और अगर दोनों इकट्ठे दिए हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी एज वेल एज नॉट विल ऑल्सो कम इन द सेंटेंस। Similarly, in third, affirmative is given here, we will be anchoring the radio show. Negative करेंगे, we will not be anchoring the radio show. Negative interrogative, will we not be anchoring the radio show? Negative. Fourth one is given here, he will be watering the plants. Affirmative given आपके बुक में, he will be watering the plants, so negative इसका क्या होगा? He will not be watering the plants. इंटेरोगेटिव मिस आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चन वाला बनाना है, तो मिस आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू राइट फर्स्ट, विल ही बी वाटरिंग द प्लांट्स। आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी आपने बनाना है, तो इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, नेगेटिव के लिए नोट बीच में आएगा। और लिखना कैसे है? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लगाना है। उसके बाद बी और अगली जो फॉर्म है आपकी एज इट इज रहेंगे। देयर विल बी नो चेंज इन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो विल ही नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। The next is given here E part. In E part, what's given here? You have given one picture in your book. On the basis of that picture, you have to write a sentence. You have to frame sentence in the future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में आपको पिक्चर को देख के लिखना है कि वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे होंगे। सो पिक्चर सेकंड में क्या है, आप अपनी बुक में देखना। सेकंड पिक्चर में जो है चिल्ड्रन रेस के लिए रेडी हो रहे हैं। सो चिल्ड्रन विल बी गेटिंग रेडी फॉर रेस, चिल्ड्रन विल बी ट्राइंग देयर बेस्ट टू विन। अब रेडी हो रहे रेस के लिए, तो जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे वो। सो इट विल बी योर आंसर। थर्ड वन में क्या, आपको ट्रेन है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है और वहां पे एक बॉय उसका वेट कर रहा है। ये पिक्चर आपको गिवन है बुक में, यू कैन सी दैट इमेज इन द बुक। सो व्हाट विल बी देयर, अ बॉय विल बी वेटिंग फॉर द ट्रेन and the train will be arriving at the platform on right time. So will be arriving, will be waiting, will be getting, will be trying. So this rule will be following here. F question. In F question, what you have to do? In F question, like what is given? If you were the prime minister for one day, इसने कहा कि अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनोगे, जैसे आपने नायक मूवी देखी होगी, नायक मूवी में क्या था कि जो अनिल कपूर था उसको वन डे के लिए क्या किया था, उसको बोला था कि वन डे के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर वो आपको वन डे के लिए प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस में कंटिन्यू में आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, अगर वन डे के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा। सो सिमिलरली यू हैव टू राइट हियर, आई विल ओपन वैकेंसीज फॉर ऑल द पोस्ट, आई विल डू जस्टिस विद ऑल, आई विल नॉट एंटरटेन लेट कमिंग ऑफ डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल। जैसे आपने मूवी में देखा था कि जैसे ही डॉक्टर लेट आए तो उनको फटाफट से क्या किया, उनको
उनकी जॉब से हटा दिया था। सो आई विल नॉट एंटरटेन, मींस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई भी लेट आता है हॉस्पिटल में। आई विल बी अटेंडिंग द ऑल द पीपल, और मैं सभी लोगों को अटेंड करूंगा, ठीक है। और इसी में फिर फिफ्थ वन है, आई विल सस्पेंड डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट में जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज उनको मैं क्या कर दूंगा, क्या करूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, राइट। सिक्स्थ वन इज गिवन, आई विल बी हियरिंग एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, और मैं हर किसी की प्रॉब्लम भी सुन रहा हूँ, किसके थ्रू, सम स्पेशल ऐप मैं यहाँ पे बनाऊंगा जिसके थ्रू मुझे फटाफट सबकी प्रॉब्लम्स को सुनने में आएगा। जैसे आपने नायक मूवी में देखा था, तो उससे आप यहाँ पर आइडियाज लेके यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन जी, जी में आपको जो फ्यूचर टेंस लिखना है यहाँ पे, मिस विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आपने यहाँ पे लगानी है। तो जैसे यहाँ पर गिवन आपकी बुक में देखना, जी क्वेश्चन में, आई डैश फॉर अ वर्ल्ड टूर इन दिसंबर, आई विल गो फॉर अ वर्ल्ड टूर इन दिसंबर। सेकंड में गिवन है, आई डैश द फ्लाइट फ्रॉम इंदिरा गांधी, तो मैं कहां से लूंगा, मैं फ्लाइट लूंगा, सो आई विल टेक द फ्लाइट फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फर्स्ट आई डैश, first I will visit the great pyramids in Egypt. Next I dash, next I will go to the skywalks and Burj Khalifa in Dubai. फिर फिफ्थ में आपका क्या गिवन है, विल बी, इट विल बी फॉलोड बाय माई विजिटिंग, इट विल बी फॉलोड बाय, सो इट विल बी आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी फॉलोड बाय माई विजिट टू वेनिस, इटली। और नेक्स्ट आपका सिक्स्थ वन गिवन है, आई विल डू सम शॉपिंग इन पेरिस, एंड सेवेंथ में है, आई विल कैप्चर नंबर्स photographs and enjoy myself, right? So this was given solution A to G question. Thank you so much for watching the video. Have a nice day everybody. If you have any kind of the demand, you can write in the comment box, but please have patience for videos because video making takes lots of time. Thank you so much guys once again.